Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So both these newspapers are very much relevant for civil services mains and prelims examination. So coming to the today's list. So today is 3rd of July. So the first topic is India first plasma bank. This is an important topic. Apart from this, defense deal with Russia. Income support and employment to poor. These are third topic. The fourth topic is India and the UNSC, the United Nations Security Council, where India has been recently selected and appointed as a non-permanent member. And apart from this, the last topic is Shivalik Forest into the Tiger Reserve. And we'll have some MCQs question at the end of this video. So first topic, that is India first plasma bank. So the Delhi government has announced its first plasma bank at ILBS hospital. And talking about the relevance of this topic, this is pretty much important for your prelims examination. Prelims के लिए बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी पे आप पे एक डेफिनेट सवाल पूछे जा सकते हैं prelims में. And talking about the general studies paper and general studies mains examination, it is again important in general studies paper 3 when science and technology portion is already mentioned in syllabus. So first thing first, that government of Delhi has launched first plasma bank for treatment of the COVID-19 patients at ILBS hospital in the national capital. ILBS hospital is a government hospital, that is India Liver and Biliary Sciences is the hospital which is located in Vasant Kunj in Delhi. And the government has appealed all of those patients who have recovered from the COVID-19 to become the donor. So there are some eligibility criteria who can donate the plasma. I will tell you in the other part of the video. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा थेरेपी. आपके लिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है. एंड फ्रॉम हियर अ क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो प्लाज्मा थेरेपी में करते हैं क्या कि जो एंटीबॉडीज़ होती है फ्रॉम द ब्लड ऑफ द रिकवर पेशेंट ऑफ द COVID-19 आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पर्सन. तो वंस अ पेशेंट इज इन्फेक्टेड, उसमें क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है. कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं कि जो बॉडी में फिर परमानेंट रहते हैं अगेंस्ट COVID-19. तो उस इंसान को, उस पेशेंट्स को दोबारा होने का खतरा कम होता है. तो उसके एंटीबॉडीज़ को ली जाती है और दूसरे पेशेंट जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र की जाती है. मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मैकेनिज्म काम करती है. नाउ अनलाइक द ब्लड डोनेशन, ओनली द प्लाज्मा इज ड्रॉन फ्रॉम द ब्लड. तो ब्लड से क्या करते हैं, सिर्फ प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जो पेशेंट्स, जो बेसिकली जो भी COVID-19 से इन्फेक्टेड है, मॉडरेट लेवल पे जो पेशेंट्स हैं उनको देते हैं. तो बेसिकली ये मॉडरेट लेवल के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा मददगार साबित होती है. एंड द होल प्रोसीजर्स ऑफ द प्लाज्मा डोनेशन टेक रफली अराउंड 30 to 45 minutes, राइट. ऑलमोस्ट इन अ आवर द पर्सन कैन बी ट्रांसक्यूटेड एंड द पर्सन हु इज गिविंग द ब्लड, उसको सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेंगे, राइट. एंड इट एम्ड एट असेसिंग द एफिकेसी, कि क्या एफिकेसी है जो हमारी कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है, उसके लिमिट्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से COVID-19 पेशेंट्स में है, उसको चेक की जाती है. एंड दिस थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पेशेंट हु आर इन द मॉडरेट स्टेज. सो एज आई हैव टोल्ड यू, दोज पेशेंट्स हु आर देयर इन द मॉडरेट स्टेज, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये मददगार साबित होती है. बिकॉज द एक्सट्रीम लेवल के जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा चांसेस कम होता है, और जो इनिशियल है दे आर नॉट उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इसको कराने की. तो जो पीपल मॉडरेट, जो पेशेंट्स जो मॉडरेट लेवल पे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है. Now how plasma therapy is done, this will help you understand कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें काम करती है. So this is a patient with COVID-19 that is called SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस COVID-19 एक ही चीज़ है. उसके ब्लड्स को लिए जाते हैं. देखो उनके ब्लड्स को कलेक्ट की जा रही है, ये एंटीबॉडीज़ हैं, राइट. सो दीज एंटीबॉडीज़ जो मैचिंग ABO कंपेटेबल होते हैं, जो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप जिनकी कंपेटेबिलिटी है, जिस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं, मैक्सिमम प्रोसीजर्स वही है जो ब्लड डोनेट करने के लिए जो गाइडलाइंस, जो क्राइटेरिया होती हैं कि आपके ब्लड मैच करने चाहिए ब्लड ग्रुप, उसमें इसमें भी उसी तरह का क्राइटेरिया है. उसके बाद क्या होता है, जो प्लाज्मा, जो स्पेशली जो इस ब्लड से जो प्लाज्मा है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड द फिल्टर, सिर्फ जो प्लाज्मा जो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, इस प्लाज्मा को जो पेशेंट्स हैं उनको देते हैं, राइट. नाउ क्या करती है, ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जा करके इस पेशेंट्स के बेसिकली एंटीबॉडीज़ के साथ जो इन्फेक्टेड है उसके साथ न्यूट्रलाइज करती है और पेशेंट को जो पेशेंट्स के जो इन्फेक्शंस हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में मदद करती है, राइट. सो दिस इज़ हाउ द प्लाज्मा थेरेपी वर्क्स. नाउ टॉकिंग अबाउट हु कैन डोनेट, कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं डोनेट करने के लिए. तो पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19
जो पेशेंट्स रिसेंटली रिकवर्ड हुए हैं कोविड-19 से उनके लिए, और बेसिकली उनका जो एज होना चाहिए वो 18 से 16 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और जो वेट है दैट इज़ अबव 50. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया, द बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्टर्स, एंड दिस नीड टू हैव वायरस फ्री फ्रॉम 14 डेज. तो जो लोग, जो पेशेंट्स जो रिकवर किए, ऐसा नहीं जो तुरंत रिसेंट रिकवर किए वो दे सकते हैं, बट एटलीस्ट आफ्टर 14 डेज ऑफ द रिकवरी दे कैन गिव द प्लाज्मा और ब्लड, राइट. नाउ प्लाज्मा बैंक है क्या, बेसिकली इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. प्लाज्मा बैंक जो बनी है रिसेंटली, तो दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, ILBS कहते हैं, गवर्नमेंट की फंडेड हॉस्पिटल है ये, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड द प्लाज्मा थ्रू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों जगह ये देती है. एंड इट विल हेल्प द प्लाज्मा बैंक इन द कंट्री टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट. इसका जो एडवांटेज है वो ये होगा कि जिस तरह से इन्फेक्शन जिस रफ्तार से फैल रही है, इट वुड हेल्प कि इस चीज़ में कुछ हद तक मदद मिल सके. ना कुछ अदर स्टेट्स जो काम कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी में, उसके बारे में थोड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिन्होंने स्टार्ट किया है ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के. स्टिल सम ऑफ द कंक्रीट रिजल्ट्स हैव नॉट कम येट फ्रॉम द महाराष्ट्र. एंड टॉकिंग अबाउट केरला हैव ऑल्सो अनाउंस कि दे विल बी सेटिंग अप द प्लाज्मा बैंक. और जो आखिरी स्टेट है, थर्ड स्टेट, दैट इज पंजाब, दे आर रनिंग द ट्रायल ऑन द एफिकेसी ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी. सो दीज 3 स्टेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेंस में इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आप इन सारे चीज़ों को एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, राइट. Now coming to the second topic, that is defense deal with Russia. You can find this news in the Hindu. आपको नेशनल पेज पे ये मिल जाएगी. तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे क्या डील हुई है. और बात करें रेलेवेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, 3 में भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही. Now यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फाइटर जेट डील्स विद रशिया के साथ डील हुई है. अभी रिसेंट में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विजिट किए थे, मैंने आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में. एंड द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो हमारी सबसे एपेक्स बॉडी है, किसी भी चीज़ को अप्रूव करने से पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बेसिकली अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर खुद. तो उन्होंने अप्रूव किया 38,900 करोड़ के आसपास की डील, राइट. एंड बेसिकली प्राइम जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो अभी रिसेंट में जो रशिया की जो 75th एनिवर्सरी थी वहाँ पे वो गए थे, एंड देयर ओनली द डील वाज साइंड. सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको डैक भी कहते हैं, ये अगेन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कई बार यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और जो डिसाइड करती है किसी भी चीज़ को लेकर के जो नई पॉलिसी है, जो कैपिटल एक्विजिशन ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड इवन द कोस्ट गार्ड. तो ये कोस्ट गार्ड वाला पॉइंट अब याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप में से कई लोग सीडीएस का एग्जाम देंगे या फिर आप CAPF का एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो दिस बिकम ट्रिकी और स्टूडेंट इसको मार्क नहीं कर पाते हैं. सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हिमसेल्फ इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, and it was formed after the group of ministers recommended the reforming the national security system in 2001. पोस्ट कारगिल वॉर के बाद इसकी ज़रूरत पड़ी और इसको बेसिकली इंस्टीट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गवर्नमेंट की तरफ से. नाउ व्हाट इज़ द डील, जो डील हुई है इंडिया और रशिया के साथ, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं. तो बेसिकली जो डील इंक्लूड करती है 21 MiG-29 फाइटर जेट्स जो इंडियन एयरफोर्स के लिए की जाएगी. उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ 59 MiG-29. उसके बाद एक्वायरमेंट ऑफ 12 सुकोई MKI एयरक्राफ्ट दैट इंक्लूड द पिनाका एम्यूनेशन आर्म्ड व्हीकल PMB जिसको कहते हैं. उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं. लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल सिस्टम है, ये भी होगी. मैं आगे आपको एक पिक्चर के थ्रू बताऊंगा जो कि हिंदू में आज है. 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी है. एंड देयर इज अ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल दैट इज कॉल्ड फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, जिसको एस्ट्रा जो है इसको की जाएगी. और जो अप्रूवल बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हुई, मैंने आपको बताया जो विक्ट्री डे परेड थी, दिस वाज मार्किंग ऑफ द 75th विक्ट्री डे परेड. वहाँ पे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे उस टाइम पे ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुई है, डील हुई हैं. सो दिस इज बेसिकली इन्फोग्राफ यू कैन फाइंड इन द हिंदू. आपको आज के हिंदू में ये इन्फोग्राफिक मिल जाएगी. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लेना. मैंने आपको सारी पॉइंट्स यहाँ पे बता दी हैं 29 MiGs के बारे में. And this is the deal will include the Pinaka, including the Russia's all-weather free fighter and rocket system. And this is the image you can see the MiG-29 fighter jet. So अगर आप briefly summarize करना चाहते हैं तो इसके through help से भी पढ़ सकते हैं. Now income support and employment to poor. Basically ये C. रंगाराजन ने लिखा है. C. रंगाराजन is a former
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं एंड ही वाज अ फॉर्मर बेसिकली गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको ये आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में मिल जाएगी। और बात करें इस तरह के आर्टिकल के रेलेवेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 और जनरल स्टडीज़ के पेपर 2, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन की जो बातें हैं वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट कोरोना के बाद की जो क्राइसिस है, इंडिया नीड टू एड्रेस मेनी प्रॉब्लम। उसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में जिक्र की गई है। तो पहला है कि कैसे हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दूसरा टू इंस्टीट्यूशनलाइज द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द मिनिमम सपोर्ट। द मिनिमम इनकम सपोर्ट जो है वो गरीब और जो वनरेबल लोग हैं उसको कैसे दी जाए। तो इस आर्टिकल में हम लोग जो सेकंड पॉइंट है, तो कैसे बेसिकली इनकम सपोर्ट देनी चाहिए वनरेबल ग्रुप को, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। राइट, हेल्थ केयर के बारे में हमने ऑलरेडी पहले काफ़ी एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया है, और इस एडिटोरियल का फोकस बेसिकली वीकर सेक्शन को कैसे इनकम सपोर्ट दिया जाए उसमें ही है। तो बेनिफिशियरी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, यही सबसे बड़ी बेसिकली प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, और उसके तरफ सोल्यूशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनी कंसिडरेबल डिस्कशन ऑन द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो बात की गई थी जो यूबीआई है वो एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, बट जो प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करें। जो नॉन यूनिवर्सल टारगेटेड प्रोग्राम है उसमें आइडेंटिफिकेशन इज एन बिग इशू। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कुछ 3 प्रपोजल बताए गए हैं, जिसमें जो मिनिमम बेसिक इनकम है उसको वी कैन कम इन रूरल एरिया एज वेल इन अर्बन एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, दोनों जगह पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके इस चीज़ से मदद ली जा सकती है। तो जो रीजन, जो बेसिकली जो ऑप्शंस बताए गए हैं, 3 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भाई आप जो महिलाएं हैं कैश ट्रांसफ़र करें, उनको जो भी अबव 20 ईयर एज हैं उनको डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया जाए। और इससे होगा क्या, अगर मिनिमम 4,000 रुपये एनुअली भी उनको दिए जाते हैं, सो द कैश ट्रांसफर वुड कॉस्ट गवर्नमेंट को जो 1.72 लाख करोड़ और 0.8% ऑफ जीडीपी का खर्च आएगा सिर्फ गवर्नमेंट को। जो सेकेंड मेजर्स बताए गए हैं वहाँ पे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है मनरेगा को। तो एक्सपेंशन की जो बात की गई है वो ये है कि जो 100 डेज़ का काम अभी दिया जा रहा है उसमें 150 डेज़ कम से कम की जानी चाहिए। और मैं 100 डेज़ में ये बता दूं, जो एवरेज अभी लोगों को जो मिल रही है वो 25 डेज़ का ही काम मिल पा रहा है। और जो इनरोलमेंट जो बढ़ी है वो 3 करोड़ के आसपास इनरोलमेंट बढ़ गई है मनरेगा में। पहले ये ऑलमोस्ट 97 लाख हुआ करती थी। Now the third steps that should be taken is the National Employment Guarantee Scheme, जो अभी रिसेंट जो सरकार ने लॉन्च किया है, बेसिकली रोजगार अभियान जो योजना है, जो स्कीम है, उसको भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। सो ऑल दीज 3 प्रपोजल वुड हैव नो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी और डायरेक्ट लोगों को सीधा बेनिफिट दिया जा सकेगा। And a combination of cash transfer and expanded employment guarantee can provide the minimum basic support। तो अगर यूबीआई करना है या यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना है, मिनिमम इनकम सपोर्ट देना है, तो ये सारी चीज़ें जो 3 जो बेसिकली स्ट्रैटेजी बताए गए हैं वो काफ़ी कारगर हो सकते हैं। इट वुड बी वेरी इफेक्टिव। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द पर डे वेजेस। एज यू नो, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जो मनरेगा का जो वेजेस है उसको 180 से 2 से बढ़ा करके 202 कर दिया गया है। राइट, सो ऑन नॉमिनल इंक्रीज ऑफ 20 रुपीज़, बट जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि इसको कम से कम 375 रुपीज़ करने की ज़रूरत थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इस तरह के आपके ओपिनियन जनरेट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना वे फॉरवर्ड क्या है, अपार्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग द रूरल मनरेगा, एक नेशनल वाइड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर लाइवलीहुड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बोथ टू द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। तो बेसिकली जो पोस्ट कोविड के बाद जो सिचुएशन होगी, वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग द मिनिमम इनकम टू द पुअर एंड द वनरेबल ग्रुप। तो जो हमारे जो भी बेसिकली जो वैसे लोग हैं जो काफ़ी गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो वनरेबल है, उनको इस तरह से सरकार मदद कर सकती है। नाउ इंडिया एंड यूएनएससी, दिस यू कैन फाइंड इन द इंडियन एक्सप्रेस। और ये टॉपिक आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। राइट, तो रिसेंटली इंडिया गॉट इलेक्टेड फॉर द नॉन परमानेंट सीट। हमारे जो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इंडिया ने 21-22 के लिए जो दावेदारी है उसमें जीत हासिल की है, इलेक्टेड। और दिस इज समथिंग विच इंडिया हैज़ इलेक्टेड एज एन 8th टाइम। इससे पहले 7 बार इंडिया ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, तो ये 8वीं बार है। तो इस पूरे एडिटोरियल में ये बात की गई है कि कैसे जो परमानेंट सीट है उसके तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है इंडिया के लिए, और इंडिया एक बहुत ही एलिजिबल कंट्री है टू बिकम द परमानेंट मेंबर।
नाउ इंडिया हैज़ गोट ओवरवेलिंग सपोर्ट, जो सपोर्ट हमें मिली 192 वोट में, वी हैव रिसीव्ड 184 वोट्स। मैं आपको आगे बताऊंगा एक पूरा क्रोनोलॉजी में हमें कितने कितने वोट मिले हैं। और जो काउंटर टेररिज्म की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी जो इंडिया की थी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर थी कि भाई जो काउंटर टेररिज्म है उसके तरफ वॉर किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ये इंडिया के एजेंडा में था, राइट। और इंडिया से पहले बेसिकली जापान, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ जो हैं ये भी फ्रीक्वेंटली इलेक्ट हुए हैं। जो इंडिया की जो रेपुटेशन की बात करें तो एक बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन रहा है इंडिया का। सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कंसेंसस रही है कि इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ यूएनएससी। नाउ एक बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो अपने यूएनएससी जो नॉन परमानेंट सीट्स हैं उसमें इंडिया की क्या वोटिंग परसेंटेज रही है और कितने वोट्स रहे। तो अगर 1950 से स्टार्ट करें तो उस समय भी हमारी जो परसेंटेज थी वो 96.5% हुआ करती थी। और अगर अभी इधर क्या बात करोगे 21-22 में तो 95.8% के आसपास जो वोट है वो हमें मिली है, राइट। सो दिस इज़ द फिगर विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कितने वोट्स हमें मिले हैं, राइट। सो 1995 से लेकर के दिस इज द 8th term, 1 2 3 4 5 6 7 and 8th term. So India has been elected for the 8th term, and this is the votes here, this is the number of the votes, and this is the percentage, right. Now moving ahead, need for the permanent membership. तो यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया के लिए परमानेंट मेंबरशिप भी काफ़ी ज़रूरी है। इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर, बट उसके लिए आगे ज़रूरी है कि किस तरह से परमानेंट मेंबर की तरफ भी रास्ता खोला जाए, क्योंकि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में बहुत पहले से ही जिक्र चल रही है। एंड इंडिया विल हैव द हाइएस्ट प्रोफाइल ऑफ द यूएन इन द नेक्स्ट 2 years, बिकॉज जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें जो कलेक्टिव वोट है, एवरी रिजोल्यूशन नीड टू बी इन द काउंसिल, राइट। तो सभी लोगों के सहमति से ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। एंड इंडिया विल हेयर अ रेयर पीप इन द कंसल्टेशन चैम्बर ऑफ द यूएनएससी एंड इट इज क्लोज नॉन मेंबर ऑफ द काउंसिल। और सबसे पहली जो ज़रूरत है आज की टुडे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, India has twice the number of the peacekeeping deployed in the ground of the P5 countries. तो जो पीस कीपिंग फोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किसी कंट्री से जाता है तो वो है इंडिया से जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते ही हमारे जो यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बढ़ानी चाहिए और जो इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर कंसिडर करने की ज़रूरत है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज शिवालिक फॉरेस्ट इनटू द टाइगर रिजर्व। यहाँ बात की गई है जो शिवालिक फॉरेस्ट है उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आप इस न्यूज़ को हिंदू के लास्ट पेज में फाइंड कर सकते हैं। नाउ प्रपोजल ये की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, कि चौथा बेसिकली टाइगर रिजर्व जो है उसको इंसेप्ट किया जाए। शिवालिक फॉरेस्ट जो है उसको सहारनपुर सर्कल के जो टाइगर रिजर्व में उसमें कन्वर्ट किया जाए। तो जो फाइनल डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी कि इस तरह से करना है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। नाउ इफ़ एक्सेप्टेड, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो उत्तर प्रदेश में ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा, बेसिकली आफ्टर आमागढ़, बिजनौर, पीलीभीत और धुआ ना, जिसमें लखीमपुर लिखरी रीजन आती है। और जो ये फॉरेस्ट है ये नदर्न टिप ऑफ द स्टेट में आएगी, जिसकी रेंज की अगर बात करें कॉरिडोर की तो 33,220 हेक्टेयर किलोमीटर लॉन्ग होगी, जो कि फुटहिल ऑफ हिमालय रेंज में है। और ये कनेक्ट करती है चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स को, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो शिवालिक रेंज के जो कनेक्शन है ये आप देख लेना, कई बार यहाँ पे डायरेक्ट प्रीलिम्स में ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ द डिसीजन क्या है, ये जो एडवांटेज, जिसका एडवांटेज ये है कि ये जो बेसिकली देयर वुड बी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम होगी बहुत हद तक, नर्चर होगी बायोडाइवर्सिटी एंड इट विल हेल्प टू नर्चर द रिच बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन एंड इट विल फैसिलिटेट द सेफ मूवमेंट ऑफ द टाइगर। तो जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, जो सेफ टाइगर का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उसके तरफ ये बूस्ट होगा, उसमें मदद मिलेगी, राइट। तो मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ये टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और अपने आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं बाय 6 PM। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली इस चैनल पर विजिट कर पाएंगे। और बढ़ते हैं अपने आज के MCQ सवाल की तरफ। तो जो पहला सवाल है दैट इज़ ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है, इकोनॉमी या करंट अफेयर से रिलेटेड ये सवाल है। तो आपको कंसिडर करना है कि ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हैं। So the capital raised from the bond would be used to fund the green and brownfield project, and the central bank of the country, that is RBI, यहाँ पे मैं RBI की बात कर रहा हूँ, RBI is concerned solely to authorize the issue of the green bond. So this is statement 1 and this is statement 2. तो आपको कंसिडर करना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। only 1, only 2, both 1 and 2 और neither of them.
Now, the second question is from the modern history. With reference to Dhirendranath Datta, consider the following statement. He emerged as the preacher of the new Hinduism, or he was the great humanist with the Ramakrishna mission for the humanitarian relief and the social work. So ये आप में से अगर कई लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, बिपिन चंद्र आपने पढ़ा हुआ है, राजीव अहिर की बुक पढ़ी हुई है, तो ये आपके लिए आंसर करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन बताएं, ए, बी, बोथ 1 and 2 और डी. राइट, तो इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी आंसर बता सकते हैं. और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें ताकि पता चले कितने आप में से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में. राइट, एंड वी हैव स्टार्टेड मॉक टेस्ट सीरीज जहाँ पे टोटल 25 टेस्ट है, 13 फुल लेंथ और 12 करंट अफेयर टेस्ट हैं. तो प्रीलिम्स में रियल एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं मॉक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें ताकि आप रियल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. राइट, and do not forget to like this video, subscribe our Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, we'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.